Hello and welcome to CBR News Network. You are watching CBR English Inside News and I am Sandeep. Jairam Ramesh criticized the adjournment of both the houses of parliament, accusing the government of obstructing proceedings. He pointed out that opposition parties filed a historic motion in the Rajya Sabha due to the chairman's bias, which has worsened the situation. Ramesh noted that various opposition parties, including Congress, TMC, AAP and others, have signed the motion to protest the government's refusal to allow discussions, particularly on the Adani issue. He also called out Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju for stating that the Rajya Sabha would be obstructed if the Adani matter was raised in the Lok Sabha. Ramesh questioned the government's reluctance to allow the debate and expressed concern this session Parliament might be washed out due to the government's strategy. बहत्तर साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं। संविधान का उनका बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं है, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है। अभी हम उम्मीद करते हैं उस पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। एक्सेप्ट आपको लगता है होगा, एक्सेप्ट होगा? नहीं, वो अभी उन पर निर्भर करता है। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। हमारा कर्तव्य है लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा है गवर्नमेंट हैज इट्स वे बट ऑपोजिशन हैज इट्स से। अगर हमारी सुनवाई भी नहीं होती है, अगर जो हम कह रहे हैं उसका पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है और जो सरकार के जो एमपी बैठे हैं वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारे नेताओं को लेकर और उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि बोलो, किसके बारे में बोलो, बोलते जाओ, तो ये अच्छा नहीं देता। Congress spokesperson Supriya Srinath raised concerns over Asaduddin Owaisi's support for Tahir Hussain, a key figure in the 2020 Delhi riots, who is contesting in the upcoming Delhi Assembly elections. Srinath questioned Owaisi's motives and alleged that his actions align with the BJP's polarization agenda. She also responded to Union Minister Kiran Rijiju's criticism of Rahul Gandhi, accusing of the government of obstructing parliamentary discussions on important issues like Adani scandal and criticizing the BJP for failing to run the House effectively. Srinath emphasized that protests and innovative tactics by the opposition aim to bring attention to the government's failures. Ma'am, one question as Tahir Hussain has joined AIMIM today and his name has been announced by Asaduddin Owaisi to contest the upcoming elections in Delhi Assembly, as he was one of those persons who were being accused in the 2020 Delhi riots. Such kind
of person contesting election, what's the take of the Congress party regarding this? Why is he contesting elections? Which party is supporting him? And what will I know who is supporting him? I'm asking you a rhetorical question. Who is supporting him and why? Why is he being supported? What is this going to do? Whose hands is Mr. Owaisi playing in? And when I say B team of the BJP, people take a lot of offense. He himself takes a lot of offense. But who is he supporting? Whose agenda is he pushing by doing these things? I don't want to speak on more things like that because he's not a member of my party. I haven't given him the ticket. My party doesn't stand with people like that. But if Mr. Asiduddin Owaisi has decided to stand by him, what's his motive? Who is he supporting? And why? And is it not playing into the BJP's ploy of polarization? That's a question all of you who keep meeting Mr. Owaisi inside and outside of Parliament should ask him. जी हुमायूं है, विधायक हैं टीएमसी के, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अगले साल तक बाबरी मस्जिद अपने इलाके में बनवाऊंगा। अब इन सब बातों का मैं क्यों जवाब दूं? वो एमएलए हैं या सांसद हैं, जो भी हैं, इसका जवाब टीएमसी दे। टीएमसी के सांसद है, मेरे सांसद तो है नहीं। मैम जी Kiren Rijiju, Union Minister, has attacked Rahul Gandhi and he said that all he has done is to create tamasha in the parliament and then he goes abroad, enjoys his holiday. That's the allegation which Kiren Rijiju has made at Rahul Gandhi. Has Kiren Rijiju found time to attend parliament instead of putting his workout videos? Has Kiren Rijiju found time other than lifting weights to tell this country what is he up to? Has Kiren Rijiju found time to make parliament function? The reality is that the failure of the government is apparent in how parliament is not functioning. And what is tamasha? I would like to ask, what is tamasha? You are not allowing the discussion on Gautam Adani, a man who has been indicted, a man who faces various charges around the world, a man who's being probed by various nations across this world, a man who faces a warrant. You are not allowing a discussion there. Why? Because he's close to the Prime Minister. Because any discussion on Adani will... Karnataka Chief Minister Siddaramaiah paid tribute to former Chief Minister S.M. Krishna, recalling his leadership during tough challenges, including the draft crisis and Rajkumar kidnapping. Siddaramaiah also addressed the Aditya Thackeray's remarks on the Maharashtra-Karnataka border dispute, affirming that the Mahajan Commission report is final and the issue will not be reopened. एमएलए ಆಗಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೀರಪ್ಪ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಆಗ ನೋಡೋಣ. Leader of opposition Rahul Gandhi was seen leaving parliament after both the houses were adjourned for the day. The adjournment following disruptions in proceedings, with opposition parties accusing the government of stalling debates and not allowing proper discussions. Gandhi's departure came amid heightened tensions between the ruling BJP and the opposition over the functioning of the parliament. अभी नहीं बोलूंगा। नहीं दे रहे भैया, स्पेस दे दो, चलो नहीं दे रहे। हेलो
BRS leader K. Kavita criticized Congress leader Revanth Reddy for the unveiling of Telangana Tali statue without prior consulting or the public discussion. Kavita alleged that Reddy's actions reflects the fear of his own historical irrelevance as he had opposed the formation of Telangana. She pointed out that if the unveiling was truly an emotional issue for the people of Telangana, Reddy should have been more transparent. Kavita emphasized that Reddy's attempts to regain a place in the history of Telangana were futile. Family or a one person is what Revanth Reddy said. Well, unfortunately, the idol that he has unveiled has not been discussed with anybody. In fact, it was kept a secret until it was unleashed. Why so much fear? If it was a emotive issue for 4 crore people, he could have unveiled it. He could have openly discussed it with everybody. He did not. He just put it. I think media also chased to get a glimpse of what was there. You know it very well. So I am only saying that it is a fear that Revanth Reddy has, that because he has always opposed the formation of Telangana, his name is not there in the history. Now he is trying to somehow make a come back into the history of Telangana, which is not going to happen. Thank you, Jai Telangana. सवाल ये पूछ रही थी कि जैसे जिस तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार के वक्त में जो है मूर्ति का ऑफिशियली औपचारिक तौर पर कुछ नहीं किया गया था, इस तरीके से अनावरण नहीं किया गया था, आज वो कर रहे हैं तो आप आपत्ति क्यों जता रहे हैं? सोनिया गांधी के बर्थडे के दिन इसको इनॉग्रेट किया गया है। कल 1 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे सरकार में। देखिए, रेवंत रेड्डी जी को अगर सोनिया गांधी जी को प्रसन्न करना है तो वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना के जनता के भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ ना करे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि ये जो तेलंगाना का प्रतिमा आपने देखा है, ये 60-70 सालों से हमारे दिलों में है। हम जब लड़ रहे थे, हम हमारे जान गंवा रहे थे, वो हमारे लिए वो एक ऊर्जा बन के रही है, वो हमारे भावनाओं में, हमारे दिल और दिमाग पे छाई हुई है। उनको आप गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं निकाल सकते हो। और आपको अगर केसीआर का निशान तेलंगाना से मिटाना है तो उनका मतलब क्या है? क्या वो तेलंगाना का राज को मिटाना चाहते हैं, वापस यूनाइटेड एपी में जाना चाहते हैं? ये सारे सवाल भी आज तेलंगाना के लिए जिन्होंने जान गंवाया, तेलंगाना के लिए जिन्होंने लड़ा है, उन सबके मन में ये सारे भावनाएं भी आज है। तो हम यही क्वेश्चन करते हैं कि आप ऐसे काम ना करो, लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ मत करो, और जो लोगों को पसंद है उसी स्टैच्यू को आप ऑफिशियल स्टैच्यू बना दो, वो भी कर सकते हैं। नॉट जस्ट वन फैमिली और वन पर्सन इज व्हाट। Delhi Chief Minister Atishi visited the site of the recent fire incident in Rajouri Garden and took the stock of the ongoing situation. She closely inspected the affected area and reassured the public that necessary steps would be taken for relief and rehabilitation. Atishi's visit came as a part of the government's efforts to address the damage caused and ensure swift assistance to the impacted fire. आराम से अभी रोल है, रोल है लो, आप देखो हो गया। ओके मैडम, कल आग लगी थी बिल्डिंग में। यहाँ पे राजौरी गार्डन में कल एक जंगल जंबोरी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत तेज़ आग लगी थी और उस आग के लगने से उसके 1 फ्लोर ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर से हमने सबने वीडियो देखे कि किस तरह से बच्चे कूद के बाहर निकल रहे थे। जैसे ही आग लगी तुरंत यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विसेज की 11 फायर टेंडर्स पहुँच गई। कई घंटों तक लगातार आग बुझाने का पूरा एफर्ट हुआ और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी की भी जान नहीं गई। जब कोचिंग सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे थे तब वहाँ पे एक महिला कूद के गिरने से उनके पाँव का फ्रैक्चर हो गया। उनको कल हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जो ये रेस्टोरेंट है इसका फायर एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुकी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की इस रेस्टोरेंट में हर रेस्टोरेंट में 2 एग्जिट होने बहुत ज़रूरी हैं फायर सेफ्टी क्लियरेंस के लिए। एक एग्जिट रेस्टोरेंट बंद कर चुका था, इसलिए इसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया था। एमसीडी ने भी इस रेस्टोरेंट को क्लोजर के ऑर्डर दे दिए थे। इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट चल रहा था। उसके किचन के अंदर क्या हो रहा था इस बात का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। जो भी इस
आगजनी के लिए दोषी है, इस आग लगने के लिए दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, दिल्ली फायर सर्विसेज को ये भी आदेश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में एक बार एक प्रॉपर ऑडिट होना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर भी बिना फायर लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो उन पर भी एक्शन किया जाए, उन पर भी कार्रवाई करी जाए। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, इसलिए मैं फायर सेफ्टी वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर पहुँचे, जिस तरह उन्होंने आग को बुझाया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी ऐसी आग ना लगे, इसलिए पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मैडम, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है, तो उसके अलावा ये रजौरी गार्डन इलाका है, सामने भी कुछ मोंगलिया। Congress MP Ramesh Tiwari criticized the government for repeatedly adjourning Parliament without any provocation, claiming it was a deliberate attempt to avoid the discussion on the 75 years of constitution functioning. Tiwari stated that government's action indicated a clear intention to disrupt the session and prevent any meaningful debate. He expressed concerns that this was a part of the larger strategy to sideline the Parliament's role and block discussions on the key issues. देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी सरकार संसद को चलने नहीं दे रही। करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को होता है। संसद क्यों बुलाई जाती है? ताकि देश का एजेंडा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार की नीतियां हैं, उन पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष चर्चा करे। ये पहली बार हिंदुस्तान के 75 वर्ष के इतिहास में हो रहा है जब सत्ताधारी सरकार संसद का समय नष्ट करके संसद को चलने पर गतिरोध डाल रही है। और ये सीधा सीधा अडानी को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही अडानी शब्द, भ्रष्टाचार शब्द, बेरोजगारी शब्द, महंगाई शब्द संसद के पटल पर आता है तो भाजपा भाग खड़ी होती है और वो संसद को चलने नहीं देते। संसदीय मर्यादाओं के लिए ये एक काला अध्याय है जो संसद के इतिहास में लिखा जाएगा, जब सत्ताधारी मोदी सरकार ने संसद को नहीं चलने दिया था। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस इस बात पे नहीं कर रही है। कई पार्टियां ऐसी हैं, टीएमसी हो, सपा हो, वो हमारे पास आ रही को सदन चलाना चाहते हैं, कोई और मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का रवैया अलग है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आदरणीय मित्र, संसदीय कार्य मंत्री तो सदन से ही गायब रहते। देखिए जरा प्रोसीडिंग निकालकर, एक बार भी वो सदन में आए तो वो कमरे में बैठकर या टेलीविजन के कैमरों के सामने बयान करने तक सीमित हो गए हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी और बीजेपी के साथी दल संसद को चलने नहीं दे रहे, नारेबाजी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार पर, भाजपा के भ्रष्टाचार पर, भाजपा की जवाबदेही पर, सरकार की नीतियों पर कोई सवाल। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced preparations for the 2025 Char Dham Yatra, aiming to improve the pilgrimage experience based on lessons from previous years. Dhami assured the suggestions from stakeholders will be incorporated to ensure a smoother and more efficient yatra. On the upcoming Mahakumbh 2025 in Prayagraj, he expressed pride in the event and emphasized the state's commitment to ensuring comfortable transport arrangements for the devotees and sadhus travelling from Uttarakhand. अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा।
कि एक यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए, उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो छूट है शीतकाल में आने वालों में, GMVN के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं, जिससे कि लोग अधिक आ सकें। मिला आपको यूपी से कुंभ मेला न्योता है, और हमारे उत्तराखंड का क्या वहाँ प्रेजेंटेशन रहेगा? नहीं, चूंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं, संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे, और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको क्या खिलाफ देहरादून में भी आक्रोश रैली हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.